So let's start with this new topic, that is macrominerals in animal health and production, reproduction, and every aspects of life. Before starting this lecture, I hope everyone is clear about macrominerals. How many macrominerals are there? कितने हैं macrominerals? There are seven. There are seven. Essential minerals are categorized in two way or either two categories. One is major or macro, that is big, and minor or macro. So there are seven major minerals, and these minerals are higher in concentration in body as well as in feed resources. That's why they are categorized as major or macro minerals. These are calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chlorine, and sulfur. Many a time this question is asked, and sometimes students get confused with, sometimes they ask nitrogen as well. So these are seven major minerals or macro minerals. We will be studying in detail what are their functions, what are the deficiency diseases, how they are helpful in animal body production system. So, starting with this calcium, not new for you. This is the second most abundant nutrient or other element after nitrogen in body. And if you talk about functions of calcium, first function is this is a skeletal function, as this is an integral part of bone and teeth, hard tissue or skeleton and teeth. So 99% of the total calcium in present in body is in the form of or is present in a skeletal system in skeleton, bone, and teeth. Another one is non-skeletal functions. Some rest 1% of body calcium, that is outside in skeleton and bone, is found in sometimes ionic form, sometimes in bond form, and in ionic form or in other form it helps in nerve conduction. So ionized calcium is essential for nerve conduction, muscle contraction or relaxation, and sometimes it is helpful in cell signaling. Calcium is also required for normal blood clotting. आपने सब बहुत सारे factors पढ़े होंगे. So calcium is required for blood clotting, fibrinogen, fibrin, और किसी एक जगह पे आपने पढ़ा होगा. Another one is this is also help in curdling of milk. So milk is being converted to curd under presence of lactobacillus or another form. So calcium is required to form calcium caseinate and some other form and for curdling of milk. So this is major functions of calcium, a skeletal function, the most important function. And remember in mind that our skeletal system and whole body is, you can say, in skeletal or structure. This is made up of calcium, calcium carbonate, or other form of calcium. Apart from this, I wish to discuss structure or rather composition of bone. Bone is made up of calcium, phosphorus, magnesium, and if you see structure of rather composition or proportion of calcium in bone, this is 36% calcium and 17% phosphorus or less than 1% magnesium. In bone, calcium and phosphorus exist in 2:1 ratio, almost 17 and 36. You can imagine, you can see. Whereas phosphorus out of total calcium present in body is 99% is in the form of calcium or is present in calcium, whereas 1% in ionic form or non-ionic form and have different function in muscle contraction or nerve conduction or other form. So major function of calcium is to provide a strength, a structure to bone, a skeleton. Functions of phosphorus likewise, it is a part of bone or rather exoskeleton or bone and teeth. It is also helpful in the energy metabolism, that is adenine triphosphate, ADP. Component of phospholipid, that is in cell membrane, and for any transfusion, rather you can say जितने भी आपने bilipid layer पढ़े होंगे, this is helpful. Phosphorus is required. Constituent of DNA and RNA. It is also in many reactive carbohydrate, protein, and lipid, and components of many enzyme system. So this is sum total of rather in gist functions of calcium and phosphorus. Again to revise,
This is an skeletal system, and calcium is also helpful in contraction of muscle, contraction of nerve, and phosphorus in phospholipid form in cell membrane, energy metabolism, constituent of DNA and RNA. It is also helpful in signaling. So after this, again, composition, if you remember composition, chemical composition of bone, calcium is 37 to 39% and phosphorus is 17%. And this is the proportion of organic and inorganic minerals, rather matter. Total inorganic constituent is about 67%, whereas organic compounds is 33%. There are some data. You should remember blood cells are devoid of calcium. Blood calcium, ये data हम बार बार आपसे पूछेंगे, because this is necessary to determine normal level of calcium. Likewise in glucose, protein and everything. So एक terminology होता है जिसको बोलते हैं Crompton metabolic profile test. So sometimes if you get sick, so this is the reference value in case of animal. So blood calcium is in the range of 9 to 12 milligram per deciliter, or sometimes you will be asked to tell percent. So you can write 9 to 12 milligram percent. But in case of laying hens, this is in the range of 32 milligram, 30 to 40 milligram, because calcium is required for formation of calcium carbonate in the egg cell. Egg cell formation के लिए calcium की requirement बहुत high होती है, apart from exoskeleton, bone और other parts के लिए. That's why the blood level or level of calcium in blood is in the range of 30 to 40 milligram per deciliter. There is one anti-nutritional factors, that is oxalate. Oxalate binds with calcium and forms calcium oxalate and make it insoluble, and that's why if there is excess amount of calcium in any feed ingredient or any other part of system, it will decrease the viability of calcium. And again, this is the culprit. You must have studied जिसे आप सिस्टोलिथ पढ़ते हैं या आप इसको क्या कहते हैं कि स्टोन बन जाता है. अगेन ऑक्सलेट play a great role in formation of stone in your liver or kidney or somewhere in your intestinal system. This way phosphorus has range of 4 to 9 milligram per deciliter. याद रखना, 3-4 चीज आपको याद दिलाएंगे हम आपको. जस्ट टू रिमेंबर, स्टार्ट करना ब्लड कैल्शियम से. कैल्शियम की का जो ब्लड रेंज होता है 9 to 12, और उसका जो लोअर रेंज है उसके अपर रेंज हो जाएंगे 4 to 9, और तीसरा जो एक और मेजर मिनरल्स है दैट इज मैग्नीशियम, उसका होगा 1 to 3 और 1 to 4 आप कह दोगे. तो मैं अगर नीचे से शुरुआत करूं, मैग्नीशियम है 1 to 4 या 1 to 3. फॉस्फोरस का क्या होगा 4 to 9, बट इन केस ऑफ कैल्शियम दिस इज 9 to 12 मिलीग्राम. समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव, कई बार पूछा जाता है कि कैल्शियम का नॉर्मल ब्लड रेंज में कितना होता है, और ये इसलिए भी जरूरी है, यू शुड रिमेंबर, क्योंकि इससे नीचे होगा तब डिजीज कौन कौन सी होगी. दिस इज रेफरेंस वैल्यू. नॉर्मल calcium to phosphorus ratio should be 2:1, and this 2:1 ratio is required for normal metabolism of calcium or normal utilization or efficient utilization of calcium and phosphorus as well. Because you ask one question regarding one disease, again this is disease due to imbalance ratio of calcium and phosphorus. There is one question, what should be the calcium to phosphorus ratio in case of laying hens? This ratio is normal or for other animals, maybe in cattle, maybe in human being, in other primates, but in case of laying hens means the birds which is in laying which lays egg daily or rather in some time interval, तो वहां पे कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो क्या होगा? एनीवन? Anyone? कैल्शियम फॉस्फोरस थोड़ा सा और आगे. मैं आपको एक यहाँ पे डाटा देता हूँ. इन केस ऑफ कैटल, अगर आप या और ब्रायलर की बारे में बात करो, तो उसके डाइट में जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है वो 1.2 होता है, और फॉस्फोरस का जो रिक्वायरमेंट होता है 0.5 होता है. बट इन केस ऑफ, जस्ट ध्यान देना,
कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1 अगर ब्रायलर में है तो लेयर में कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और रेस और होता है। और इन केस ऑफ लेइंग हेन्स ये जो कैल्शियम का रेशियो है वो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 डिवाइडेड बाय 0.6, यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, 6:1। फिर से सुनो, यहाँ पे अगर 2:1 है तो बट इन केस ऑफ लेयर इट इज 6:1। ओके, now come to metabolism of calcium or how calcium is efficiently utilized. Keep in mind ये जितना डिटेल में अभी पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये कैल्शियम फास्फोरस, थोड़ा उनको बोले धीरे बोले, क्लास ले रहा हूँ पीछे। कैल्शियम ये जिस डिटेल में अभी पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही एसेंशियल है, बिकॉज इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस हैं। इन क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स you will be encountering many diseases related to calcium and phosphorus. तो ये 3 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। वन इज पैराथायराइड हार्मोन, अनदर वन इज हार्मोनल फॉर्म ऑफ vitamin D3, and third one is calcitonin. This is not new for you. Parathyroid hormone is responsible for increasing the calcium level in blood. Simultaneously or rather in same way 125 dihydroxycholecalciferol, जिसको calcitriol भी कहते हैं, this is physiological active form of vitamin D3 or sometimes hormonal form of vitamin D3. Sometimes you ask कि विटामिन D3 के हार्मोनल फॉर्म क्या होते हैं, तो आपने कोलेकैल्सिफेरॉल पढ़ा होगा, दिस इज विटामिन D3, या आर्गोकैल्सिफेरॉल पढ़ेंगे तो दैट इज विटामिन D2। बट दिस अगर 2 बार हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, दैट इज एट पोजीशन ऑफ 1 and 25, देन इट इज कन्वर्टेड टू हार्मोनल फॉर्म एंड इट हैज significant effect on calcium metabolism. And calcitonin, you know, this is a pictorial presentation. If serum calcium is lowered than the normal, then parathyroid gland will be active, parathyroid hormone will be released, and parathyroid will has 2 action on bone and as well as calcium in kidney, and from there this will absorb calcium, reabsorption molecule, and it will increase the blood calcium level. In case of vitamin D3, एक चीज ध्यान देना, जब कभी भी आपके घर में या कभी बोन का कोई इशू होता है या यूं कह लो कि फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक आपको टैबलेट देते हैं, जस्ट उसको ध्यान से देखना, उसमें 3 चीजें होती हैं, वन इज कैल्शियम, अनदर इज फास्फोरस, एंड थर्ड वन इज विटामिन D3। फास्फोरस नहीं भी होगा तो कैल्शियम के साथ विटामिन D3 और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम विटामिन D3 होता है, बिकॉज विटामिन D3 इज वेरी मच एसेंशियल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ calcium. In next slide we will be dealing with detail how vitamin D3 is helpful in calcium uptake or production of calcium metabolism को कैसे करता है. Again this acts on intestine. There is one protein that is called calmodulin or calcium binding protein. Third hormone is calcitonin. अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, then this calcitonin comes in picture and it reduces the level of calcium. So एक लंबा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, write hormonal regulation of calcium. So you have to write, you have to mention these 3 chemical or hormone, that is parathyroid hormone, 125 dihydroxycholecalciferol, that is active form or hormonal form of vitamin D3, and third one is calcitonin. तो इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके रख लीजिएगा. रेगुलेशन एक थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैराथायरॉइड हार्मोन अगेन इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम अपटेक के बावजूद अगर उसको बढ़ाना है तो वो कैसे काम करता है. सेकंड वन इज विटामिन D3. विटामिन D3 जिसको आप कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, ये 2 बार हाइड्रोक्सिलेशन होता है. फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन समझते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएगा, वन इज एट 25 कार्बन चेन, तो इसको कहेंगे 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल. और अगेन पहली बार ये लीवर में होता है और दूसरी बार वो किडनी में होता है. तो ये 2 बार जब हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है तब जो वो फॉर्म बनता है, दैट फॉर्म इज नोन एज hormonal form, that is 125 dihydroxycholecalciferol. And this 125 dihydroxycholecalciferol
activates rather promotes one protein, this is known as calbandin or sometimes calcium binding protein. ये थोड़ा इन डिटेल जा रहा हूं, लेकिन अगर आप ना भी याद रखें, एक बार माइंड में आप रख लें कि ये क्या चीजें होती हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और काल्बंडीन जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है और कैल्शियम को के अपटेक को यहाँ से लेके उधर की तरफ ले जाता है, ड्यूडेनल प्रोटीन से लाता है और टू एंड फ्रो कराता है. और दिस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का जो सिंथेसिस है या एक्टिवेशन है वो विटामिन डी पे है. तो विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की कमी होगी या उसके फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम होगी, एंड दिस विल अगेन रिड्यूस द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम. ठीक है, तो एंड अगेन calbandin is calcium binding protein and this is helpful in calcium uptake. Calcium flow, हाँ कैल्शियम एक पुल है, ब्लड पुल में होता है. अगेन डिपेंडिंग अपॉन प्रायोरिटी, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, समटाइम्स इट गोज टू मिल्क और फीटस, इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन होता है. फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन इट इज स्टोर्ड इन बोन, बट इन केस ऑफ स्कार्सिटी समटाइम्स इट इज reabsorbed from bone to increase the calcium pool level or rather normal level of calcium in blood. Kidney again reabsorption जब जरूरत होती है then it is helpful in calcium, and this is the reason sometimes you this is for this may be useful for you as human being or other mothers of every human being are more prone to कई बार आपने देखा होगा कि घर में जब बूढ़ी औरत होती है ना तो उन्हें कमर में दर्द होना शुरू होता है, बोन की प्रॉब्लम होती है. तो कैल्शियम का जो ड्रेन है, इन 1 लीटर कैल्शियम 1.2 ग्राम कैल्शियम इज बीइंग ड्रेन. तो कैल्शियम का जो डिफिशियंसी हो जाता है तो बीइंग मदर, बीइंग नेचुरल इंस्टिंक्ट, वो क्या करती है कि बोन से या अदर पूल से जो कैल्शियम होता है वो उसको ब्लड में लाती है और ब्लड से फिर वो मिल्क में सेंड करती है. तो बोन जो है वो बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है और आपको पता होगा कि एक एज के बाद कैल्शियम का अपटेक आपके बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा कि बोन का कैल्सिफिकेशन या बोन का डिपोजिशन आपके बोन में नहीं हुआ, और जब बोन का डिपोजिशन आपके बॉडी में नहीं होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस और उसके साथ जो डिजीजेस होती हैं वो होती चली जाती हैं. एंड दिस इज द रीजन मादास और अदर एल्डरली लेडी, जो कई बार आपने घर में भी देखा हो कि कई बार हमारी माँ जो होती है अपना दूध नहीं पीती है, यानी कि घर का दूध जो है वो अपने बच्चे को या पति को पिला के खुद नहीं पीती है, तो वो कैल्शियम की कमी उसके शरीर में हो जाती है. एंड इन ओल्डर एज इट लीड्स टू बैकएक और अदर तरह की परेशानी होती है. सेम वे इन केस ऑफ काउ एज वेल, कि दूध में वो कैल्शियम को देने के लिए बोन से रिजॉर्व करती है, रीअब्जॉर्ब करती है, एंड सर्टेनली इट लीड्स टू, मैं एक डिजीज बताऊंगा इसको कि मिल्क फीवर कहते हैं, दिस इज रिलेटेड टू कैल्शियम. Another one is calcium and phosphorus source. So these are some. Each and every ingredient contains calcium, but concentration of calcium is different. Milk is rich in calcium. That's why we used to promote calcium, drinking of milk for calcium as well as protein. Forages में calcium होते हैं, but legume contains higher concentration of calcium as compared to non-leguminous. कंसंट्रेट या जो आपके दाने होते हैं, सीरियल्स आर लो इन कैल्शियम बट वेजिटेबल प्रोटीन्स आर हायर इन कैल्शियम एज कंपेयर टू सीरियल ग्रेन्स, बट फिश मील और मीट मील दैट इज एनिमल प्रोटीन सोर्स इज रिचर सोर्स ऑफ और अदर हैव ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस. दीज आर सम बोन में 29 एंड 30, आप अगर 36 और 17 भी याद करेंगे तो ठीक हो जाएगा. अनदर वन इज डाइकैल्शियम फॉस्फेट, लाइमस्टोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट 33 और 36 आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, डायमोनियम, दीज आर सोर्सेस ऑफ सिंथेटिक सोर्सेस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. नाउ कम टू डिफिशियंसी डिजीजेस. कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस होती है तो पहला चीज है डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, बिकॉज कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. If there is a deficiency of calcium in blood, then it will lead to decrease in milk production. Egg production, because calcium carbonate is useful for formation of egg cell. So once calcium is deficient in any feed, it will lead to depressed egg production. And one term is hatchability. Hatchability means egg hatchability, hatching egg from egg to chick or double chick. Sometimes due to cracking of eggs, poor formation of egg cell, hatchability is not possible or hatchability is disturbed. Therefore, there is decrease in
hatchability. There are some 3 diseases you must have studied. In young age, there is one disease known as rickets, जिसमें कि softening of bone हो जाती है, bowing of legs हो जाती है. और rickets is not only related to calcium. पहले भी पढ़ा होगा. Rickets is calcium dependent or maybe due to deficiency of calcium. Sometimes this is due to phosphorus, sometimes due to vitamin D3. So बोन के फॉर्मेशन में जितनी सारी चीजें होती है उसकी किसी डिफिशियंसी से रिकेट्स हो सकते हैं. सो यंग वन में जो अगर बोन के ये प्रॉब्लम होते हैं देन इट इज नोन एज रिकेट्स. और अगर यही एडल्ट में हो जाते हैं दैट इज ओस्टियोमेलेसिया एंड ओस्टियोपेरोसिस. देयर इज सम डिफरेंस इन ओस्टियोमेलेसिया एंड ओस्टियोपेरोसिस. एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स अगर होने लगे तो एक वाइड बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है और बोन कमजोर हो जाता है. दैट इज ओस्टियोमेलेसिया. और यहाँ पे जब मैट्रिक्स लेस मैट्रिक्स होगा और मिनरलाइजेशन जो है वो कांस्टेंट रह जाता है देन इट इज ओस्टियोपेरोसिस. ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है. तो आपको अगर यंग में कहा जाए देन इट इज रिकेट्स, बट इन केस ऑफ एडल्ट वन दैट इज ओस्टियोमेलेसिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज मिल्क फीवर और पार्चुरियंट पेरेसिस. sometimes this is the only fever in which there is no fever. Yeah, you can say this is misnomer. There is a milk fever में एनिमल का बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है. ठीक है. and another term is parturient paresis. This disease is related with milk production, parturation. That's why this. इसको थोड़ा सा डायनेमिक समझे, आप पहले समझा होगा. तो कैल्शियम, नॉर्मल कैल्शियम लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मसल मूवमेंट के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए रिक्वायर होती है. होता क्या है इन केस ऑफ, मैं एक डाटा अगर यहाँ है तो मैं दिखाऊंगा आपको. नहीं होता क्या है कि एक मान लो कि 10 लीटर मिल्क दे रही है, कोलेस्ट्रॉम में 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम होता है. तो जैसे ही एक काऊ ने पार्चुरेट किया, बेबी को जन्म दिया, तो मिल्क ड्रेन होगा. और जब मिल्क ड्रेन होता है तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है. अब सपोज करो कि बॉडी में कैल्शियम नहीं है, उतना बॉडी में कैल्शियम रिजर्व नहीं है, तो क्या करती है, ध्यान देना, ये कुछ होमियोस्टेसिस कह लो या मदर इंस्टिंक्ट कर दो कि आप उसको कैल्शियम नहीं भी दिया है तो जहाँ कहीं भी कैल्शियम होगा उसके बॉडी में, वो वहाँ से कैल्शियम निकाल के दूध में दे देती है. तो जब दूध में वो चला जाता है, मिल्क में चला जाता है, तो देयर इज फिजियोलॉजिकल डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन बॉडी. और कैल्शियम की जब कमी हो जाएगी तो उसके डिफिशियंसी से जो मूवमेंट होता है, मसल कंट्रैक्शन होता है, वो कंट्रैक्शन नहीं हो पाता है. तो इसके कारण क्या जो होते हैं, मसल कंट्रैक्शन हुआ, गाय खड़ी नहीं हो पाती है और वो फिर निढाल होकर गिर जाती है. दिस डिजीज इज नोन एज मिल्क फीवर. सो इफ यू आस्क टू राइट अबाउट मिल्क फीवर, तो मिल्क फीवर इज ए डिजीज ऑफ कैटल, रेदर मिल्किंग कैटल, और जो जिनकी पार्चुरेशन हुई है. दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम. क्या होता है, पहले वो खड़ी नहीं हो पाती है, उसके बाद भी आपने कैल्शियम नहीं दिया, तो वो इसको कहते हैं, ये अपना सर को यहाँ पे कर देती है, नीचे ऐसा कर देती है, उसके बाद लेटरल रिकम्बेंसी होती है. अगर उसके बाद भी नहीं किया देन इट कैन लीड टू डेथ. तो मिल्क फीवर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम. इट इज नॉट ड्यू टू एनी कंटाजियस एलिमेंट और अदर माइक्रोब्स. इसके लिए क्या करते हैं हम, 400 और 600 आप क्लिनिक्स में जाएंगे, देखेंगे बार बार ये केसेस आती है, और ये हाई इल्डर्स को ज़्यादा होता है. तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम की कोई प्रिपरेशन अगर हम उसको इंट्रावेनस दे देते हैं, तो जैसे ही कैल्शियम का रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो जाती है, काउ स्टार्ट्स रनिंग, वो तुरंत में खड़ी हो जाती है और नॉर्मल हो जाता है. ठीक है. तो दिस इज ओनली वन. तो वहाँ पे कई बार हम फास्फोरस भी देते हैं, कई बार मैग्नीशियम भी देते हैं, और कई बार विटामिन D3 देते हैं. बट इमीडिएटली अगर आपने कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया इन एनी वे मीन्स कि अगर फास्ट देना है तो IV देना होगा, इंट्रावेनस देना होगा. एंड दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क फीवर इन केस ऑफ कैटल. अगेन दिस डिजीज इज मोर प्रोमिनेंट और अदर्स इन केस ऑफ हाई इल्डर्स. अगर लो इल्डर्स में करेंगे तो क्या होगा, बॉडी से कैल्शियम ट्रेन कम होगा तो वो इतना अपने आप में मैनेज कर लेती है. बट इन केस ऑफ हाई इल्डर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज हाई ड्रेन ऑफ कैल्शियम. फास्फोरस, लाइकवाइज फास्फोरस की डिफिशियंसी से एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं पाइका. ध्यान रखना, पाइका और डिप्रेड एपेटाइट.
पाइका का क्या मतलब होता है कि किसी भी इनिमिनेट चीज को वो खाने की कोशिश करेगी, या यूं कह लो कि जैसे मिट्टी है, बालू है, या कई बार यूरिन को लीक करना शुरू होती है, दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पाइका। एंड इसको कहते हैं डिप्रेव्ड एपेटाइट, या जिसको हिंदी में दूसरा कुछ नाम है। इसमें कई बार आप गांव में जब जाओगे तो लोग क्या कहते हैं, देखना ये दिस इज मिथ और अदर इवन दे ट्रीट, जब ऐसी कुछ होने लगता है, कुछ भी खाने लगती है गाय वगैरह, तो क्या करते हैं, उसको माचिस की जो तिल्ली होती है ना, वो उसको पीस कर खिला देते हैं विद द फैक्ट दैट दिस कंटेंट्स फॉस्फोरस। लेकिन बीइंग वेटनेरियन आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉस्फोरस की डिफिशियंसी को हम अगर पूरा कर देंगे तो ये पाइका डिजीज जो होता है वो ठीक हो जाएगा, चाहे वो फॉस्फोरस के कोई इंजेक्शन हम दे दें, चाहे वो फॉस्फोरस फीड में दे दें, तो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट जब फुलफिल हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। अनदर वन इज, दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा ऑस्टियोडिस्ट्रोफा फाइब्रोसा और बिग हेड डिजीज और न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। कीप इन माइंड, जब ये सवाल मैं पूछूंगा, अभी क्विज भी लूंगा, तो जब जैसे ही मैं लिखता हूँ न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, उसमें एक ऑब्जेक्टिव में एक आपका टिक लगा हुआ होता है, एक ऑप्शन होता है आयोडीन भी। बच्चे केवल पैराथायराइड देखा नहीं कि आयोडीन पे टिक लगा देते हैं। कीप इन माइंड दिस इज ड्यू टू एक्सेस लेवल ऑफ फॉस्फोरस और ड्यू टू डिस्टर्ब रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, कैसे होता है ध्यान रखना, जिसको कहते हैं एनएसएच, न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। होता क्या है, सपोज करिए कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो 2:1 है, 2:1 रेशियो को आपने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा, कैल्शियम कम है और फास्फोरस ज्यादा दिया तो क्या होगा कि कैल्शियम का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल डिफिशियंसी होगा। उसको पूरा करने के लिए क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो पैराथायराइड हार्मोन के लिए थायराइड बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा, बड़ा होना शुरू होगा, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ होता है और वो धीरे धीरे बोन को बड़ा करने लग जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बिग हेड डिजीज एंड दिस इज ड्यू टू डिस्टर्ब कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, आपने ज्यादा फास्फोरस दे दिया है। ठीक है, इसको दूसरे नाम भी होते हैं पेरिडेंटल डिजीज। थैंक यू वेरी मच, आई ट्राइड माय बेस्ट टू फिनिश इन टाइम, आई हैव ओनली लेस देन 1 minute, आस्क मी क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल अगेन ज्वाइन। कोई सवाल आपसे पूछने हैं? एनी क्वेश्चंस? सर पेरियोडेंटल डिजीज डिजीज को हम फिर डॉग में और ह्यूमन में